Good morning, children. Once again, I am Monica Ratnu from Layal Public School. How are you all, children? Hope you all are good at home. So, students, yesterday I have taught you about parts of plants and where plants come from. कल हमने पढ़ा था plants के main parts के बारे में और plants आते कहाँ से हैं, where plant come from. इसके बारे में पढ़ा था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट्स कहाँ से आते हैं, सीड से। हर सीड में एक बेबी प्लांट होता है। एवरी सीड कंटेन अ बेबी प्लांट. So children, hope you understood the concept. After that we revise the chapter. उसके बाद में हमने चैप्टर को रिवाइज किया था. In our today's class we solve book exercise of this chapter. आज की क्लास में हम इस बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. Clear, children? So let's start. Our first exercise will be tick the correct answer. आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर क्वेश्चंस के बाद कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर क्या करना है, आपको टिक करना है. क्लियर? So first is very big plants are called. Yes, very big and strong plants क्या कहलाते हैं? Tell me the answer. Yes, option is trees, herbs or shrubs. Yes, tell me the answer, children. Very big plants are called, yes, answer will be trees. So we tick on trees. Second is small and strong plants are. जो small भी होते हैं और जो strong भी होते हैं, जो trees से छोटे होते हैं. As I told you that small and strong plants are called shrubs. So answer will be shrubs. Yes. Now go ahead. Page number 23. Our third question will be plants which grow along the ground. Yes, tell me the answer. जो plants सिर्फ ground पर grow करते हैं, सिर्फ ground पर ही बढ़ते रहते हैं, ऐसे plants को क्या बोलते हैं? Climbers, creepers or shrubs? Yes, tell me the answer. Yes, very good. Plants which grow along the ground are called creepers. जो सिर्फ ground पर ही बढ़ते रहते हैं उन्हें कहते हैं creepers. So answer will be creepers. Clear? Our next question will be fill in the blanks with the correct words from the tree. आपको एक tree दिया गया है यहाँ पे. Yes, as you can show the tree. इसके अंदर आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है और इस हेल्प बॉक्स के थ्रू आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के ब्लैंक्स को फिल करना है. क्लियर? सो फर्स्ट इज थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम इज कॉल्ड. पहले तो आप मुझे ये बताओ कि थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम होती किसकी है? यस, थिक, हार्ड एंड वुडी स्टेम सिर्फ और सिर्फ ट्रीज की होती है, लेकिन उसे कहते क्या है? यस, वो कहलाती है ट्रंक. TRUNK, trunk. So answer will be trunk. Thick, hard and woody stem is called trunk. Next is neem is a. Neem क्या है? Yes, हम सब जानते हैं. It's very simple. Neem is a tree. So answer will be tree. Neem is a tree. एंड लास्ट इज ग्रेपवाइन इज ग्रेपवाइन मींस होता है अंगूर की बेल. और जो बेल होती है, जो लताएं होती है, मैंने आपको बताया था वो कहाँ बढ़ती है, वो ऊपर की तरफ जाती है. और जब ऊपर की तरफ जाती है तो वो इतनी वीक होती है कि अपने आप ग्रो नहीं कर पाती और उन्हें किसी ना किसी सपोर्ट की नीड होती है, चाहे वॉल हो, चाहे स्टिक हो या कोई अदर प्लांट हो. तो आप बताओ, जिन्हें ऊपर जाने के लिए सपोर्ट की नीड होती है, ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है? Yes, answer will be climber. So grapevine is a climber. Got it? Okay. Our next question will be our next question will be take the correct statement and cross the incorrect statement. आपको जो correct है, जो right statement है, उस पर क्या करना है, उस पर right tick करना है. And जो incorrect मतलब wrong statement है, उस पर आपको cross tick करना है. Clear, children? So first is wheat plant is a creeper. Yes, wheat plant creeper होता है. It's right or wrong? Yes, it's very incorrect statement. So here we mention cross. Wheat plant क्या होता है? Wheat plant creeper नहीं होता है. Wheat plant example होता है herbs का. Very small and weak plant. Clear? Second is rose plant is a herb. Rose plant herb होता है. No, it's also incorrect statement. So here we mention cross because rose plant क्या होता है? Rose plant is a shrub. वो shrub का example है, वो herb नहीं होता है. And third is the stem of neem tree is called trunk.
जो नीम ट्री की जो स्टेम होती है वो ट्रंक कहलाती है. यस, इट्स ट्रू. सो हियर वी मेंशन राइट. जो नीम, चाहे नीम की का ट्री हो या पीपल का ट्री हो या मैंगो का ट्री हो, जो उनकी स्टेम होती है वो ट्रंक ही कहलाती है. क्लियर चिल्ड्रन? सो हियर वी मेंशन राइट. Okay, now go ahead. Our next question will be answer the following questions. हमें 2 questions यहाँ पे दिए गए हैं और उनके आंसर हमें मेंशन करने हैं. Clear? So first is write the names of 2 herbs. हमें 2 herbs के नेम लिखने हैं. और herbs क्या होते हैं? Yes, as we know that small plant with soft and green stem are called herbs. ऐसे plant जिनकी stem बहुत soft होती है और green होती है और बहुत small plant होते हैं, वो plants क्या होते हैं? वो herbs होते हैं. And example of herbs, उनके हमें name लिखने हैं plants के. So first is wheat, WHEAT, wheat. And second is coriander. Coriander means होता है हरा धनिया. CORIANDER, coriander. Yes, these are examples of herbs. Next is name 2 plants which need support to stand straight. Yes, as we know that plants that need support to grow are called climbers. पहले बता दूं मैं आपको, ऐसे plants को climbers कहा जाता है जिन्हें grow करने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की नीड होती है. और इनके एग्जांपल्स हमें यहाँ पे लिखने. टू. सो फर्स्ट एग्जांपल विल बी मनी प्लांट, MONEY, money. Plant, PLANT, plant. Yes. And second is peas, PEAS, peas. Peas means होते हैं मटर की बेल. Clear? Okay, now go ahead. Now the time of an activity. Yes, let's do. Paste pictures of any 2 flowers and write their names below. आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे या तो 2 flowers की पिक्चर पेस्ट करनी है. अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो आपको ड्रॉ करने हैं और उनमें कलर करना है. आफ्टर दैट आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको उनके नेम मेंशन करना है. लाइक आपने यहाँ मान लो रोज प्लांट ड्रॉ किया है या आपने रोज प्लांट की पिक्चर पेस्ट किया है, तो आपको नेम मेंशन करना है यहाँ रोज. एंड सेकेंड, सपोज आपने लोटस की पिक्चर पेस्ट किया है या लोटस प्लांट आपने ड्रॉ किया है, तो आपको यहाँ नेम मेंशन करना है लोटस. क्लियर चिल्ड्रन? आप जो भी प्लांट यहाँ ड्रॉ करोगे, जो भी प्लांट सॉरी जो भी फ्लावर यहाँ ड्रॉ करोगे, जो भी फ्लावर की पिक्चर यहाँ पेस्ट करोगे, आपको उन्हीं के नेम मेंशन करने. क्लियर? नाउ गो अहेड, टर्न द पेज. Our next exercise, yes, it's very interesting. Collect fallen leaves and flowers of different shapes and size. Press them between pages of a book for a week. Make a greeting card using these dry leaves and flowers. Present it to your friends on his or her birthday. आपको क्या करना है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. आपको कुछ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स इकट्ठे करने हैं जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो. आपको उनको क्या करना है? अपनी बुक के पेजेस के अंदर 1 वीक तक रखना है, ताकि वो क्या हो जाए? वो ड्राई हो जाए. जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तो उनको पेस्ट करके आपको एक ब्यूटीफुल सा कार्ड बनाना है. वो चाहे बर्थडे का कार्ड हो सकता है, चाहे वो अपनी आप सिस्टर के लिए राखी का कार्ड बना सकते हैं, या किसी और भी चीज का, कोई और इवेंट का कार्ड भी आप बना सकते हैं. अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी टीचर को, आप किसी को भी उसे गिफ्ट प्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रन? Now go ahead, let's think and answer. Yes, first is name a flower which grows in muddy water. It is the national flower of India. Yes, first line is name a flower which grows in muddy water. Muddy water means क्या होता है? Muddy water means होता है जो गंदगी वाला, जो कीचड़ वाला पानी होता है, उसे बोलते हैं muddy water. और कीचड़ के अंदर कौन सा फ्लावर बताओ ग्रो करता है? सिर्फ एक ही फ्लावर है जो कीचड़ के अंदर, जो मड के अंदर ग्रो करता है, वो है लोटस. एंड इट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, और यह इंडिया का नेशनल फ्लावर भी है. सो आंसर विल बी, हियर वी मेंशन लोटस, LOTUS. लोटस. लोटस मीन्स क्या होता है? लोटस मीन्स होता है कमल का फूल. Okay, next is name a fruit also called the national fruit
ऑफ इंडिया, एक ऐसे फ्रूट का नेम बताना है जो क्या है, जो इंडिया का नेशनल फ्रूट है. अभी हमने नेशनल फ्लावर मेंशन किया है, अब हमें नेशनल फ्रूट बताना है. तो टेल मी द आंसर. यस, दिस इज मैंगो. MANGO. So children, mango is the national fruit of India. इंडिया का नेशनल फ्रूट है. बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है. सबसे ज्यादा जो फ्रूट पसंद होता है वो मैंगो होता है. I like also mango very much. Okay, now go ahead. Let's go. You are unable. Yes, you are unable to reach mangoes on a mango tree. What will you do to get mangoes from the tree? You will. आपको एक मैंगो का ट्री दिखा है, ठीक है. आपको उसमें से क्या करना है, आपको मैंगो चाहिए उसके ऊपर से, लेकिन वो मैंगोज आपके हाथ नहीं आ रहे हैं, वो बहुत ऊंचे हैं, आप उनको नहीं ले पा रहे हो. तो आप इसके लिए क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन इज थ्रो स्टोन्स एट द ट्री. पेड़ पर पत्थर फेंकोगे? नो, इट्स वेरी बैड थिंग बिकॉज ट्री इज ऑल्सो अ लिविंग थिंग. यस, जैसे कि वो लिविंग थिंग होते हैं तो उनको भी चोट लगती है, तो हम उन पर कभी भी स्टोन थ्रो नहीं करेंगे. सेकंड इज क्लाइंब ऑन द ट्री. नो, ये हमें क्या कर सकता है, ये हमें हर्ट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, हम गिर सकते हैं, तो हम पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे. थर्ड इज कट डाउन द ट्री. अगर एक मैंगो चाहिए उसके लिए हम पूरे पेड़ को तो नहीं कट करेंगे ना, इट्स ऑल्सो वेरी रॉन्ग. यस, नेक्स्ट इज टेक अ हेल्प ऑन एन एल्डर पर्सन. किसी बड़े की हेल्प लेंगे. यस, इट्स राइट आंसर. हम मैंगो के लिए, हमें अगर ट्री से मैंगो चाहिए तो हम अपने किसी बड़े की, किसी एल्डर पर्सन की हेल्प लेंगे. यस, नेक्स्ट इज okay, how can we take care of plants in our surroundings? Read the sentences and pick the correct option. हम अपने surroundings में जो plants हैं उनकी take care कैसे कर सकते हैं, अपने चारों तरफ जो plants हमें दिखते हैं उनकी take care हम कैसे कर सकते हैं. ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको उन पे टिक करना है जो करेक्ट ऑप्शन है. सो फर्स्ट इज पुल आउट प्लांट्स. उनको खींचना चाहिए हमें. नो, इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी बैड हैबिट. सो ये ऑप्शन नहीं है. सेकंड इज वाटर द प्लांट्स. यस, इट्स वेरी गुड. So here we mentioned tick. Next is pluck flowers from the plant. Pluck flowers means flowers को तोड़ना चाहिए हमें plant से. No, it's also very bad habit. And next is put potted plants in the sun. Potted जो plants होते हैं, जो plants गमले में लगे होते हैं, pot में लगे होते हैं, उनको sun में रखना. Yes, it's also right because प्लांट को ग्रो करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि सनलाइट की भी नीड होती है, एयर, वाटर एंड सनलाइट. तो अगर हम पॉटेड प्लांट्स को सन में रखेंगे तो वो उसके लिए अच्छी चीज होगी. ओके चिल्ड्रन. So children, today we have completed our chapter 3 with book exercise. Now we will meet in our next meeting. Okay, till then you read it on. Okay, stay home, stay safe. Thank you.